everyone, welcome to IS Origin. I am Shruti Jha, and in today's session we are gonna study about a very important topic, certainly related to current affairs as well, और static point of view से भी ये topic important है, which is SCO Summit 2024. Okay, let's see. So, recently, आपको पता होगा that our foreign minister Dr. S. Jaishankar has visited Pakistan for this summit, which is going to be, I think it has been held around 15th or 16th October 2024 in Pakistan, Islamabad. Now, why it has been so much in news? Because जो हमारे foreign minister हैं, after 9 years gap, after 2015, certainly our foreign minister has visited Pakistan. तो एक तो उस नजरिए से भी ये important हो जाता है, और दूसरा एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में जो अभी टेंशन्स चल रहे हैं उनकी कंट्री में regarding the इमरान खान PTI party and whatever protests are happening in their country, तो उस प्रोटेस्ट के चलते इस समिट का वहां पर होना, already the global media is having a look towards the summit. So चलिए देखते हैं. Okay, Pakistan hosted the 2024 summit in Islamabad. Prime Minister Shehbaz Sharif will welcome leaders from member states like China, Russia, Iran and India. तो ये countries जो है वो गई हैं. Okay, the summit will focus on important regional issues like security and economic cooperation. As you know that SCO जो है, it is a group of Central Asian countries. Okay, अब उसमें कोऑपरेशन किस तरीके से होगा और एक सिक्योरिटी किस तरीके से हमको इस एरिया में मेंटेन रखनी है, उसके ऊपर जो है वो इस समिट में बात हुई है. ओके, India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will represent India, and other high-level officials from across the region will also attend. Okay, India-Pakistan relations at the summit. So first of all, our foreign ministers is very clear from his side that no bilateral dialogue amid terrorism. ओके, अगर टेररिज्म होगा तो हमारे बीच में आपस में फिर हम कुछ बात नहीं कर पाएंगे. द ओनली पोटेंट रीजन वाई आवर फॉरेन मिनिस्टर हैज विजिटेड पाकिस्तान फॉर दिस पर्टिकुलर समिट बिकॉज ही वांट टू स्ट्रेंथन टाइज विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ वन और टू कंट्रीज लाइक at one side we have China, at the other side we have India. So just because of despite the conflicts with these two countries, we cannot affect our relations with the other countries of the world. And just because of that reason, our foreign ministers has agreed to visit Pakistan for this summit. Okay. This summit happened at a time of ongoing tension between India and Pakistan, particularly after the Pulwama attack in 2019. उस टाइम पे भी ये summit हुआ था. Okay, despite their participation, both countries have said that they won't hold bilateral talks during the event. तो bilateral talks जो है वो नहीं हो पाई थी. हम सारे events में ये देखते हैं कि अगर बहुत सारी group of countries अगर किसी summit के लिए एक जगह पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उधर पे बायलेटरल टॉक्स भी हो जाते हैं. अगर इंडिया को रशिया के साथ मिलके एक मीटिंग करनी है तो वो भी हो जाती है, या फिर इंडिया को यूएस के साथ मीटिंग करनी है तो वो भी हो जाती है. बट बायलेटरल टॉक्स के लिए जो है वो दोनों कंट्रीज का जो है वो अग्री होना एक पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड वी आर नॉट डेफिनेटली सीइंग कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक पॉइंट पे अभी अग्री करने के लिए रेडी है. ओके, इंडिया एम्फसाइजेस द नीड फॉर पीसफुल रिलेशंस बट इट इंसिस्ट्स on addressing terrorism issues first. तो अगर आप टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए हमारा साथ देंगे, then India is ready certainly to have a talk with पाकिस्तान. बट अगर आप टेररिज्म को पूरे टाइम सपोर्ट करोगे, टेररिस्ट्स को जो है वो अपने कंट्री में आप हाइड करके रखोगे, और कहीं पे भी आप दूसरे साइड जो है वो कश्मीर का इशू जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे यूएन वगैरह में जो है वो आप लेके जाते रहोगे, है ना, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल. सो इस चीज के चलते फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है ना कि जो है वो हम सोचें कि ठीक है एक लेवल पे आके सर्टेनली हम डिस्कस करें, साथ में बैठ के बातें करें कि ठीक है अब किस तरीके से हम दोनों कंट्रीज को साथ में मिलके चलना है. ओके, नाउ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स. सो चाइना के साथ भी हमारे साथ सेम इशू है. चाइना बॉर्डर पे हमारे जो है वो अपनी मिलिट्री को है वो डिप्लॉय करके रखते हैं, और डोकलाम इशू बहुत ज्यादा न्यूज में था. एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट कि डोकलाम में भी कितना ज्यादा जो है वो एक तरीके की टिफ हो गई थी इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में. और उस टाइम पे भी
काफी सोल्जर्स भी जो है वो श्रद्धांजलि उनको दी गई थी, क्योंकि वो जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इसीलिए चाइना का जो एक बोल सकते हो आप पॉलिसी है, जो इनकी ग्लोबल पॉलिसी है, ये हर एक कंट्री को जो है वो अपना एक सब पार्ट देखते हैं। ये सोचते हैं कितना ज्यादा जो हम कंट्रीज को जो है वो अपने पार्ट बना सकें या फिर हम एक्सपैंड कर सकें। ओके, तो चाइनीज की जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा रॉन्ग है रिगार्डिंग इंडिया एज वेल, बिकॉज दे क्लेम द एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो। तो इसीलिए जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत ज्यादा चाइना के साथ हमारे रहते हैं। और उसके अलावा भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना, पाकिस्तान में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है, डैम्स बनाना, ठीक है, हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी कंट्रीज के साथ हैं उनको ब्लॉकेज देना। तो ये जो है वो सर्टेनली दीज आर द इश्यूज विच वी आर करंटली डीलिंग विद चाइना। सो in addition to India-Pakistan issue, India and China are also dealing with the tensions over their shared border. Okay, while the summit is not directly aimed at solving this, it provides an opportunity for indirect dialogue between the two nations. Okay. Now, protests in Pakistan. We know that Imran Khan is in jail. और उनके जो पार्टी के मेंबर्स हैं, पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इमरान खान को जो है वो आप जेल से रिलीज करिए और उनको वापस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाइए। तो ये जो है इसके चलते जो है वो प्रोटेस्ट वहां पे चल रहे हैं। और इस बीच में एससीओ समिट का वहां पे ऑर्गेनाइज होना इज सर्टेनली अ वेरी बिग थिंग। तो पाकिस्तान का जो है वो मेजर कंसर्न अभी है कि हमको सिक्योरिटी किस तरीके से मेंटेन करनी है, किस तरीके से हमें ये देखना है कि जो समिट है वो स्मूथली फ्लो हो जाए। वरना पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो बहुत न्यूज में रहता है कि कोई भी इवेंट, कोई भी आप स्पोर्ट का इवेंट ले लीजिए या कोई भी समिट ले लीजिए, एवरीबडी इज स्केयर्ड टू गो इन पाकिस्तान, सर्टेनली बिकॉज ऑफ द kind of image they carry in the global world. Okay, so certainly the same thing is with SCO summit as well. बट जो आर्मी है उनको डिप्लॉय करा गया है, कमांडोज को डिप्लॉय किया गया है कि जो समिट है वो अच्छे से हो जाए, और सर्टेनली समिट अच्छे से हो भी गया है। ओके, पाकिस्तान इज फेसिंग डोमेस्टिक चैलेंजेस अहेड ऑफ द समिट, स्पेशली विद प्रोटेस्ट्स led by the opposition PTI party. Protesters are demanding the release of former Prime Minister Imran Khan, who is currently in jail. This has forced the Pakistani government to tighten the security and make sure that the summit goes very smoothly. Okay. Now, heightened security for the summit. मैंने आपको बताया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है वो डिप्लॉय किया गया है, कमांडोज को डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाहती नहीं है कि किसी भी तरीके का जो है वो हम पे एक ब्लैक स्पॉट काइंड ऑफ क्रिएट हो जाए कि पाकिस्तान तो अब जो है वो कोई भी समिट करने लायक या फिर कोई भी इवेंट करने लायक नहीं बचा है। ओके, टू इंश्योर सेफ्टी ड्यूरिंग द समिट, पाकिस्तान हैज डिप्लॉयड ओवर 10,000 पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस इन इस्लामाबाद। ओके, पब्लिक गैदरिंग्स हैव बीन कैंसल्ड, दे आर बैंड एंड स्ट्रिक्ट सर्विलेंस इज बीइंग enforced around the key locations such as Adiala jail where the Imran Khan is being held. तो इमरान खान को जिस जेल में रखा गया है उसके अराउंड जो है वो सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई थी, क्योंकि अगर वहां से भी प्रोटेस्टर्स कुछ भी स्टेप लेने को रेडी हो सकते थे, इसलिए वहां की जो सिक्योरिटी काफी हाई कर दी गई थी। ओके, नाउ अबाउट द एससीओ। सो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बना था? तो जो है वो 2001 में बना था, एंड एट दैट टाइम द फाउंडिंग मेंबर्स वर 8, ओके, इंक्लूडिंग चाइना। इंडिया वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ. India and Pakistan together joined the SCO in 2017, and later on Iran also joined, and अभी recently जो है वो बेलारूस ने ज्वाइन किया है in July 2024, और ईरान ने 2023 में उसको ज्वाइन किया था। अच्छा, मेंबर्स और देख लेते हैं कौन कौन है। तो चाइना है, रशिया, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. All of these are the Central Asian countries. Okay. So what is the main goal? Definitely the main goal of any particular organization is to have cooperation between all of the member countries, have that security and regarding all the financial stability, और पूरे जो कंट्रीज हैं वो साथ में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जो है वो एक दूसरे के नेबर्स होते हैं, राइट। और नेबर्स अगर साथ में कोऑपरेशन करके नहीं चलेंगे तो ना तो किसी का भी जो है वो भला नहीं हो पाएगा। ओके, सो दैट इज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी organization. The main goal of the SCO is to promote cooperation among its members states in areas like politics, economy, and military efforts. Okay, especially in combating separation, terrorism, and extremism. Okay, that's great.
So this was it for today's session, guys. ये समिट जो है वो अभी ऑर्गेनाइज हुई है और इस समिट के बारे में जानना काफी जरूरी था हमारे लिए कि इस समिट में क्या हुआ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्योंकि पाकिस्तान गए थे. सो आई होप आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी इस सेशन के थ्रू. टिल देन, फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS Origin, एंड टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.